Hello students, welcome to Level Up CUET. So today we are discussing about fundamental rights that are under part 3 of Indian Constitution. So as we all know that fundamental right is one of the most important aspect of Indian Constitution. Basically it contains the rights which are guaranteed to you against state in fundamental rights. If state violates any of the fundamental rights that is guaranteed under part 3, so you can directly approach to High Court under Article 226 and Supreme Court under Article 32 for of writ, right? So writ is basically issued by Supreme Court and High Court only in the case of violation of fundamental rights by the state. So basically fundamental right is under part 3 of Indian Constitution from Article 12 to 35. Basically Article 12 and 13 are not specifically provide any right or guarantees any right. Article 12 simply states about what is state. आर्टिकल 12 हमें बताता है कि भाई स्टेट क्या होता है. जब भी फंडामेंटल राइट को हम इन्फोर्स करवाते हैं स्टेट के अगेंस्ट या स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ स्टेट. तो स्टेट की डेफिनेशन आपको आर्टिकल 12 में दी गई है और आर्टिकल 13 में जो आपको दी गई है दैट वो बताया गया है कि लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, जैसे कि भाई कुछ लॉज ऐसे होंगे जो प्री इंडिपेंडेंस लॉज होंगे, कुछ लॉज ऐसे होंगे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉज. तो आर्टिकल 13 हमको यही बताता है कि उन लॉज की क्या वैलिडिटी होगी जो कि फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट होंगे. ठीक है, अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में देख लें तो इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं. मैग्ना कार्टा इज अ बिल ऑफ राइट्स दैट इज मेड बाय ब्रिटेन. तो मैग्ना कार्टा एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपके राइट्स दिए हुए हैं. तो इट इज़ बेसिकली कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1512. ओके, ऑल्सो ये जो फंडामेंटल राइट्स का आइडिया है, आपने देखा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमने बोरो किया है. उसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो है हमने वो बोरो किया है यूएसए से, राइट. प्रीएम्बल इज ऑल्सो बोरोड फ्रॉम यूएसए. तो फंडामेंटल राइट्स हैं दैट आर इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज आई प्रीवियसली मैंशनड. फोर्सिबल ओनली अगेंस्ट state and only in case of the violation of the rights guaranteed and the state is the violator, right? So part 12 to part 35, article 12 to article 35 describes fundamental right. So article 14 to 18 is the right to equality, article 19 is the right to freedom, right? Article 20 is protection against conviction, article 21 you know right to life and personal liberty, article 21 is right to education, है ना. Article 23-24 is right against exploitation. 25 to 28 is right to religion, right? And 29 to 30 is right to cultural and educational rights, मतलब right of minorities. ठीक है, इसमें आर्टिकल 19(1)(f) आर्टिकल 19(1)(f) and Article 31. These two provisions deal with the laws regarding right to property, which was previously considered as a fundamental right. But after amendment of 44th Amendment 1978, it was not considered as now fundamental right, but it was as merely statutory right. Right. So this Article 19(1)(f) and Article 13 has been omitted, and now the right to property is not a fundamental right; it is merely a statutory right under Article 300 of Indian Constitution. Right. These are basically the powers of the parliament even under this article 33 and 34 is not that important. Article 35 legislate on the provisions. So basically these are the gist of fundamental rights. Also there are fundamental rights which are guaranteed to citizens, and there are some fundamental rights which are guaranteed to both citizens and non-citizens who are foreigners. So quickly we will go through these provisions. तो फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन एंड नॉट फॉरेनर्स, ऐसे फंडामेंटल राइट जो कि सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है वो कौन कौन से हैं. आर्टिकल 15 है. आर्टिकल 15 इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. 16 है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम, राइट. 29-30 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज. तो ये जो है आपका ये सारे राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं. ये जो यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं ये सारे राइट्स सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं. आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, 20 आपका राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, 21 राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एजुकेशन, exploitation, right to exploitation, right against exploitation, right of religion, right to practice any religion, right. So these are the rights which are available against citizens as well as foreigners. The next important question is, can the fundamental right waived?
क्या हम अपने फंडामेंटल राइट को वेव ऑफ कर सकते हैं, मतलब क्या हम स्वतः अपने फंडामेंटल राइट को छोड़ सकते हैं? तो द आंसर इज नो, वी कैन नॉट वेव द फंडामेंटल राइट्स as it is guaranteed by the state and it is guaranteed by the constitution. So these are the rights which are imposed upon the person. So any person could not waive their fundamental right from his own choice. इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बहराम खुर्शीद पेरिस काका वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ये जजमेंट दिया दैट we cannot waive this fundamental right. The court said that an accused cannot waive of his fundamental and get convicted. Right? कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि भाई आप जो है मेरे फंडामेंटल राइट्स, जैसे मान लीजिए राइट टू हर्ड ऑडियो अल्ट्रम पार्टम दैट द बोथ साइड मस्ट बी हर्ड, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर गारंटीड अंडर आर्टिकल 20. तो कोई भी पर्सन जो अक्यूज है या कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता है कि भैया आप मेरे साइड को मत सुनो या फिर एक साइड का सुन के ही आप जजमेंट दे दो, राइट? या फिर मैं अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करना चाहता हूँ तो आई विल वेव माई फंडामेंटल राइट, ऐसा कोई नहीं कह सकता है. सो द कोर्ट हेल्ड दैट द अक्यूज कैन नॉट वेव ऑफ हिज फंडामेंटल राइट एंड गेट कन्विक्टेड. ठीक है, एक ये इसका केस है बहराम खुर्शीद का. दूसरा केस है बशेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है, यहाँ पे इस केस में इनकम टैक्स एक्ट 1947 के अंडर ये इन्होंने बशेश्वर नाथ ने कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड सेटलमेंट्स करवाई थी. बट बाद में क्या हुआ कि उन जिस प्रोविजन के अंदर इनकम टैक्स के जिस प्रोविजन के अंदर ये सेटलमेंट हुआ था उस प्रोविजन को वॉयलेटिव बता दिया गया ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अब बशेश्वर नाथ जी का कहना ये था कि जो भी उस ग्राउंड पे इनके सेटलमेंट्स हुए थे, जो भी उस ग्राउंड्स पे इनके सेटलमेंट का पैसा इनको देना था, अब ये देने से मना कर रहे हैं. इन्होंने बोला कि भाई जो भी ग्राउंड्स थे वो ग्राउंड को वॉयलेटिव हो गया, जिस लॉ के बेसिस पे आपने सेटलमेंट करवाया था वो लॉ तो वॉयलेटिव है, दैट लॉ वॉज स्ट्रक डाउन, तो उसके लिए अब ये लायबल नहीं है, राइट? तो कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन थे उनका कहना ये था कि भाई आपने जब सेटलमेंट कराया था जिस टाइम पे, उस टाइम पे जो रिलेवेंट लॉ था जिसको आप फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, तो उस टाइम पे वो लॉ इक्वल एप्लीकेबल था. आपने उस टाइम पे किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, दैट मीन्स यू हैड वेव्ड योर फंडामेंटल राइट. बट ऐसा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट किया और बोला आप अपने फंडामेंटल राइट्स को किसी भी सिनेरियो में वेव ऑफ नहीं कर सकते हैं. तो इस केस में जो डिसीजन आया वो बशेश्वर नाथ जी के फेवर में आया था, करेक्ट? The same has been written here. Nath did not pay his installments under the settlement scheme made under this act and his properties were attached by the government. ठीक है, तो इसी को लेकर के मिस्टर नाथ जी ने चैलेंज किया कि भाई जिस एक्ट के अंडर उनका ये सेटलमेंट हुआ, दैट एक्ट हैज बीन नाउ डिक्लेयर्ड null and void. There he is not personally liable to pay the taxes, right, or the amount of settlement. इसके बाद जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी का केस हुआ था, दैट इज राइट टू प्राइवेसी केस. जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फेमसली नोन एज राइट टू प्राइवेसी केस. राइट टू प्राइवेसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड्स डिसीजनल ऑटोनॉमी एज वेल. मतलब कि यहाँ पे किसी पर्सन का डिसीजन भी हो सकता है कि भाई उसको अपनी प्राइवेसी चाहिए या प्राइवेसी नहीं चाहिए. कुछ लोग होते हैं भाई जिनको अपनी कुछ प्राइवेसी नहीं चाहिए होती है, वो अपनी हर छोटी से छोटी मोमेंट्स या छोटी से छोटी एक्शन वो सोशल मीडिया या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पब्लिक करते हैं. तो इट इज़ कम्प्लीटली अ डिसीजनल ऑटोनॉमी, इट इज़ कम्प्लीटली अ पर्सन डिसीजन वेदर ही ऑप्ट फॉर प्राइवेसी और नॉट, राइट? सो यहाँ पे हम ये डिडक्ट कर सकते हैं दैट देयर कैन बी वेवर विथ रिस्पेक्ट टू द राइट टू प्राइवेसी, राइट? तो राइट टू प्राइवेसी इस जजमेंट के बाद इट इज़ अ फंडामेंटल राइट. सो हम राइट टू प्राइवेसी जो है वो वेव ऑफ कर सकते हैं, बट अदर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ, राइट? तो जो भी है बशेश्वर नाथ का जजमेंट है, जब तक ये ओवर रूल ना हो जाए. तो जस्ट यही है कि हम फंडामेंटल राइट्स राइट टू प्राइवेसी के अलावा और कोई फंडामेंटल राइट्स वॉलंटरीली वेव ऑफ नहीं कर सकते. क्लियर? तो आई होप आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स समझ में आया होगा. इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? तो अब हम पढ़ेंगे what is Article 12, that is a state against which the fundamental right is guaranteed to you. Okay, so see you in the next class. Thank you.